ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے یورپ کے ایک انتہائی خوبصورت، جدید اور قدیم خصوصیات رکھنے والے ملک کے بارے میں۔ اس دیش میں کئی ایسے انوکھے، دلچسپ قوانین اور تہوار ہیں جو دوسرے کسی ملک میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آپ نے آج تک نئی سے نئی ایجادات کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن اس ملک کے جادوگر ڈیجیٹل بجلیاں گرانے لگے ہیں۔ یہاں ایک ایسا جنگل بھی ہے جو بھی ایک مرتبہ داخل ہوا پھر واپس لوٹ کر نہ آ سکا۔ اور حال ہی میں اس یورپی ملک نے پاکستان سے 10 لاکھ افرادی قوت کی ڈیمانڈ کی ہے، اور کس کس شعبے کے افراد مانگے ہیں، ویڈیو کی تفصیل آگے آئے گی۔ رومانیہ وسطی اور جنوب مشرقی یورپ کے کراس روڈ پر واقع خوبصورت پہاڑوں، سبزہ زاروں، جدید و قدیم محلات و دل فریب آبشاروں کا ملک ہے۔ رومانیہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی روما نسل کے لوگوں کا ملک۔ روما حقیقت میں خانہ بدوشوں کو کہا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے یورپ میں تقریباً 10 لاکھ روما خانہ بدوش رہتے تھے۔ سب سے بڑی روما کمیونٹی تقریباً 3 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، اور اکثر چھوٹے تاجروں، کاریگروں، صنعت کاروں، مزدوروں اور گانے بجانے والوں کے طور پر کام کرتے تھے۔ اور ایک دوسری رائے یہ بھی ہے یہ رومی نسل کے لوگوں کا دیس ہے، اور اس کی تاریخ 40,000 سال سے بھی پرانی ہے، جس پر مختلف ادوار میں مختلف ملکوں نے حملہ کیا اور اسے اپنی سلطنت کا حصہ بناتے رہے۔ مملکت رومانیہ کا آغاز رومانیہ کے بادشاہ کیرول اول کے دور سے ہوا، جس نے رومانیہ کی جنگ آزادی میں فتح حاصل کی، جو 13 مارچ 1881 سے 30 اگست 1947 تک قائم رہی، اور اس کا اختتام رومانیہ کے بادشاہ مائیکل اول کی معزولی سے ہوا۔ محترم ناظرین، کون کہتا ہے کہ 2 ملکوں کا جھنڈا ایک جیسا نہیں ہوتا؟ اگر آپ نے بھی یہ سنا ہے تو غلط سنا ہے۔ ریپبلک آف چاڈ اور رومانیہ کے پرچم سیم ایک جیسے سرخ، نیلے اور پیلے رنگ کے ہیں۔ ملک کا کل رقبہ 2,38,391 مربع کلومیٹر ہے، اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 84واں بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی جولائی 2018 کے ایک اندازے کے مطابق 2 کروڑ 15 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ یورپی یونین کا 7واں، دنیا کا 58واں زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ اس کی سرحدیں ان ممالک سے ملتی ہیں۔ رومانیہ کے مغرب میں سربیا اور ہنگری، شمال مشرق میں یوکرین اور مالدووا، اور جنوب میں بلغاریہ واقع ہیں۔ اس کا دارالحکومت بخارسٹ ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا اور یورپی یونین کا 10واں بڑا شہر ہے۔ رومانیہ نے دولت عثمانیہ سے 1877 میں آزادی حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین کے خلاف عالمی جنگ میں حریف تھا، جس میں رومانیہ اپنے 3 حصے گنوا بیٹھا، اور یہ جنوری 2007 کو یورپی اتحاد کا رکن بنا، دسمبر 1955 کو اقوام متحدہ، مارچ 2004 کو نیٹو، اور اکتوبر 1993 کو یورپی کونسل کا رکن بنا۔ دریائے ڈینیوب کے اوپر انسانی ہاتھوں سے تراشا ہوا دنیا کا سب سے بڑا پتھر کا مجسمہ موجود ہے۔ یہ مجسمہ ڈانیسے کے آخری بادشاہ دیجے پال کا ہے، جو پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا ہے، اور یہ مجسمہ 1994 سے 2004 تک 10 سال کی طویل مدت میں مکمل ہوا۔ یہ 42.9 میٹر اونچا ہے، اور اس مجسمے تک پہنچنے کے لیے کشتیوں کی مدد سے جایا جا سکتا ہے۔ ملک میں ہر سال 2000 سے زائد لڑکیاں 16 سال سے کم عمر میں ماں بن جاتی ہیں۔ یہ کم عمر مائیں اکثر اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کے باپ ان کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں کی 81% آبادی مسیحیت کے فرقے ایسٹرن آرتھوڈکس کی ہے، 6% پروٹسٹنٹ، 4% کیتھولک اور 1% مسلمان ہیں، جبکہ 8% ایسے بھی افراد ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ رومانیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ملک کی پارلیمنٹ کی عمارت ہے، جو 7 سال کے طویل عرصے میں تعمیر ہوئی۔ یہ 240 میٹر لمبی، 270 میٹر چوڑی اور 86 میٹر اونچی ہے۔ اس عمارت کی 12 منزلیں ہیں، اور اس عمارت کی تعمیر میں $3 بلین کی خطیر رقم خرچ ہوئی۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کی قیمتی ترین عمارت ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس بلڈنگ میں 1 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں۔
इसमें 1100 कमरे हैं, इनमें से पेशतर सारा साल खाली रहते हैं। इस इमारत का सालाना खर्च $60 लाख है। इस बिल्डिंग के इतराफ में 8 अंडरग्राउंड रास्ते हैं जो 20 किलोमीटर लंबी सुरंग से मुंसलिक हैं। इस इमारत के अंदर 3500 टन खूबसूरत दीदा जेब नगीने, 480 शमादान, 1409 मुख्तलिफ रंगों के कुमकमे और 7 लाख टन स्टील और तांबा इस्तेमाल हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस इमारत को दुनिया की सबसे बड़ी इमारत करार दिया है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपकी पेरिस जाने की ख्वाहिश है लेकिन बजट इजाज़त नहीं देता तो रोमानिया के कैपिटल बुखारेस्ट की सैर को जाएं। इसे रोमानिया का पेरिस भी कहा जाता है। दरियाए डेन्यूब के किनारे सरसब्ज वादी दुनिया की तारीखी जगह है। ये यूरोप की दूसरी बड़ी सरसब्ज वादी कहलाती है। मुल्क का सबसे बड़ा नस्ली गिरोह रोमानियन है जो 88% है। 6% हंगरियन, 3.3% रोमानी और 0.4% यूक्रेनी और जर्मन नस्ल के लोग आबाद हैं। यहाँ बेरोजगारी की शरह 11% है। ये दूसरे यूरोपीय यूनियन के ममालिक से ज़्यादा अमीर मुल्क तो नहीं, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों से इसकी ग्रोथ रेट और शरह तालीम में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मुल्क की कौमी ज़ुबान रोमानियन है जो कि 1700 साल पुरानी ज़ुबान है। दुनिया की खूबसूरत तरीन शाहराह ट्रांसफागरासन हाईवे इस मुल्क की खूबसूरती को और भी 4 चांद लगाती है। ये मुल्क के वस्त में वाक़े है। इस शाहराह को ऊंचाई से देखा जाए तो ये इंग्लिश वर्ड एस से मिलती जुलती शेप की तरह है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 75 साल है। फुटबॉल इस मुल्क का मकबूल तरीन खेल है। इसके अलावा दीगर खेलों में हैंडबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, टेनिस, जिम्नास्टिक बहुत मशहूर और शौक से खेले जाते हैं। रूस, बेलारूस, मोल्दोवा, लिथुआनिया के बाद ये 5वां मुल्क है जहाँ कसीर तादाद में मैनोशी की जाती है। रोमानियन लोग साल में औसतन 14.4 लीटर शराब पी जाते हैं। इसमें हैरानगी की बात बिल्कुल नहीं। ये मुल्क शराब की प्रोडक्शन में दुनिया भर में पहले और बियर की पैदावार में 10वें नंबर पर है। यही शराब इस मुल्क के ज़र मुबादला में तेज़ी से इजाफे का बायस है और ये तमाम यूरोपीय मुल्कों को शराब एक्सपोर्ट करता है। रोमानिया में जादू टोना की तारीख बहुत पुरानी है। ये ऐसा मुल्क है जहाँ जादू टोना या ब्लैक मैजिक या काला जादू करने पर हुकूमत को टैक्स देना पड़ता है। इंटरनेट ने रोमानिया के जादूगरों को ये सहूलत फराहम की है कि वो घर बैठे अपने जादू का असर दुनिया भर में फैला सकें। ये तकरीबन 4000 ख़वातीन सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया के दीगर हिस्सों में मौजूद लोगों के घरों में फसाद फैला रही हैं। याद रहे, इनके बकौल यूरोप की ज़्यादा औरतें सच्चा प्यार ढूंढने के लिए राब्ता करती हैं और एशियन लड़कियां अपनी सास को ठिकाने लगाने के लिए हर कीमत देने को तैयार रहती हैं। यहाँ की शहरी मॉडर्न और हाई स्टैंडर्ड लाइफ बसर करते हैं। यहाँ की लड़कियां खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, इसलिए यहाँ की लड़कियों को क्वीन ऑफ रोमानिया भी कहा जाता है। यहाँ लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा है। मुल्क की भागदौड़ का निज़ाम सदर के पास होता है। लोहानिक क्लाउस दिसंबर 2014 से रोमानिया के सदारती ओहदे पर फायज हैं, जबकि वियोरिका दिनचिका जनवरी 2018 से वज़ीर आज़म हैं। इस मुल्क की शरह तालीम दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत बहुत बेहतर है। 2018 की यूनेस्को रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ शरह तालीम 98.6% है। मर्दों की निस्बत औरतों की शरह तालीम कम है। रोमानिया का टाइम जोन पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। रोमानिया सिगरेट की स्मगलिंग के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी वजह सिगरेट की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। 4G टेक्नोलॉजी में ये मुल्क दुनिया का चौथा मुल्क है जहां 4G की स्पीड दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है। यहाँ एवरेज स्पीड 35.61 मेगाबाइट पर सेकंड है। यहाँ के शहरों की गलियों में हज़ारों आवारा कुत्ते गश्त करते हैं जो हर साल तकरीबन 9000 अफराद को काटते हैं। ब्लैक सी किनाल इंसानी हाथों से बनाई गई सुएज और पनामा के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी नहर है। दुनिया में सबसे बड़ा झंडा 2013 में रोमानिया के लोगों ने तैयार किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस झंडे का वजन 5 टन और इसका साइज 349 बाय 227 मीटर और 44 मील लंबा था। ज़राए आमदोरफ्त की बात की जाए तो यहाँ 22,298 किलोमीटर वसी दुनिया का 5वां बड़ा रेलवे ट्रैक का नेटवर्क मौजूद है और मुल्क में 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 10 से ज़ायद फ़िज़ाई कंपनियां काम कर रही हैं।
बुखारेस्ट के शुमाल में हेनरी कोंडा मुल्क का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। हेनरी कोंडा रोमानिया की हर दिल अजीज शख्सियत थे। ये जेट इंजन के मुजिद थे, इसलिए हेनरी कोंडा एयरपोर्ट इनके नाम से ही मंसूब किया गया है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ के लोगों का ख्याल है कि मरने के बाद इनके प्यारों की कब्रों को सजाया जाए तो इनकी रूहों को बहुत सुकून मिलता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग अपने प्यारों की कब्रों को खूबसूरती से सजाते हैं। इन कब्रों को कीमती पत्थरों, दीदा ज़ेब डिज़ाइनों से आरास्ता करते हैं। खाम तेल इस मुल्क की ज़राए आमदन का बड़ा ज़रिया है। डोमेन नेम .ro है और मुल्क का डायलिंग कोड +40 है। मुल्क में ट्रैफिक दाईं तरफ चलती है और गाड़ियों के स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर होते हैं। मुल्क का कौमी फूल डॉग रोज है। कौमी जानवर लीन कैट है। कौमी खेल पुआनू है, जो लकड़ी के एक डंडे और लेदर की बाल से खेला जाता है। मुल्क की करेंसी लियो कहलाती है, जो पाकिस्तानी 38 रुपयों और इंडियन 16.33 रुपयों के बराबर है। मुल्क की निफ्स से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है। कैपिटल बुखारेस्ट में वाक़ लाइब्रेरी का शुमार दुनिया की 7 बड़ी लाइब्रेरियों में होता है। दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट माइन म्यूजियम इसी मुल्क में है। ये हाथों और मशीनों से बनाया हुआ सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसको बनाने में कोई बारूदी मवाद इस्तेमाल नहीं हुआ। ब्लड प्रेशर की तशखीस सबसे पहले 1914 में निकोलियन पोलिस ने की। दुनिया में लिखने का रवाज सबसे पहले रोमानिया में शुरू हुआ और मुल्क का अमीर तरीन शख्स लुआन निकोलाई है। ये इंट्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो कि इस मुल्क में खाद और काश्तकारी के लिए ज़री आलात बनाने के लिए बहुत मशहूर है। ये खुद एक बहुत बड़े काश्तकार माने जाते हैं और ये तकरीबन 50,000 हेक्टर पर मुहीत रकबे पर काश्तकारी करते हैं। इसके अलावा ये 1996 से फुटबॉल टीम आस्त्रा जॉर्जो के मालिक भी हैं। इनकी दौलत का तखमीना $1.2 बिलियन लगाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का बना चर्च और यूरोप की दूसरी लकड़ी से बनी इमारत रोमानिया को दूसरे यूरोपीय ममालिक से और भी मुमताज़ बनाती है। चर्च की ऊंचाई 257 फीट और मजीद इसके ऊपर 23 फीट लकड़ी का सलीबी निशान है। रोमानिया गोल्ड की पैदावार में यूरोप का अमीर तरीन मुल्क है। 1917 में मुल्क में 10 बेनी नामी करेंसी मुतारफ कराई गई, जो साइज के एतबार से दुनिया की सबसे छोटी करेंसी थी, जो सिर्फ 1.5 इंच लंबी थी। ब्रेड इस मुल्क का छोटा सा शहर है, जहां 100 साल पहले दुनिया का वाहिद गोल्ड म्यूजियम तामीर किया गया, जिसमें दुनिया भर से कीमती नवादरात जवाहरात रखे गए हैं। 2005 में रोमानवी करेंसी लियो अपनी वैल्यू की 4 सिफरें खो बैठी, यानी 10,000 लियो 1 लियो के बराबर हो गया। इसकी वजह थी बैंकों ने कागज की बजाय प्लास्टिक की करेंसी मुतारफ करवा दी। पेल्स महल यूरोप का वाहिद महल है, जो सारा साल बरकी कुमकुमों से जगमगाता रहता है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली बिजली इस महल में लगाए गए प्लांट से हासिल की जाती है। महल का सेंट्रल हीटिंग सिस्टम 1888 में तामीर हुआ था, जो आज भी काम कर रहा है। तिमिसोआरा यूरोप का वाहिद शहर है, जहां 1899 से आज तक स्ट्रीट लाइट जगमगा रही हैं। ये यूरोप का पहला शहर था जहां घोड़ा गाड़ी को पटरियों पर चलाना शुरू किया गया। 2002 में जनूब मगरबी रोमानिया में अक्लों को हैरान कर देने वाले जानवरों के ढांचे दरियाफ्त हुए। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इन ढांचों की उम्रें 37,000 साल से लेकर 42,000 साल पुरानी थी। मुल्क के होया बाचू फॉरेस्ट, जिसके बारे में कहा जाता है ये दुनिया का सबसे ज्यादा असेब ज़्यादा जंगल है। इसे रोमानिया का बरमुदा ट्राई एंगल भी कहा जाता है। ये जंगल 617 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस जंगल के बारे में बहुत सी रवायात और कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि जो शख्स भी इस जंगल में एक मरतबा गया वो जिंदा वापस नहीं आया। अगर बिलफर्ज कोई जिंदा बचकर आ भी गया तो इसके जिस्म पर खराशें थी या वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गया। इस जंगल के दरख्त भी अजीबो गरीब तरीके से उगे हुए हैं। 1970 में यहाँ खलाई मखलूक के देखे जाने की भी इतलाआत मिली हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल है रोमानी ज़बान रूस की ज़बान से मिलती जुलती है, लेकिन हकीकत में रोमानी ज़बान एक मोहब्बत भरी ज़ुबान है जो इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल में बोली जाती है। हालिया दिनों में रोमानिया के एक इंजीनियर ने जदीद खुसूसियात की हामिल उड़न तश्तरी बनाई है। उड़न तश्तरी का आइडिया फिल्मों में खलाई मखलूक से जोड़े जाने वाले स्पेस बस से लिया गया है। रोमानी लोगों ने साइंस में भी बेपनाह कारनामे सर अंजाम दिए हैं। निकोलाई पलेस्को ने 2 कैनेडियन साइंसदानों के साथ मिलकर शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन इजाद की। इसी बिना पर इनको 1923 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। पिनोराई कासल के बारे में कहा जाता है ये हकीकी तौर पर ड्रैकुला का महल है, जिसके बारे में अनगिनत
ہالی ووڈ کی مووی بن چکی ہیں۔ رومانیہ میں اپریل کے پہلے ہفتے کے روز شام 4 بجے ورلڈ پیلو فائٹ ڈے منایا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے ہر گھر میں سب سے زیادہ میٹھی لڑائی تکیے کے پیچھے ہوتی ہے، اور کچھ کا ماننا ہے حقیقت میں پیلو فائٹ اپنے سامنے والے کو احساس دلانا ہے کہ ہم تمہیں سمجھانا تو چاہتے ہیں لیکن نرم و ملائم روئی کے ساتھ۔ پاکستان میں رومانیہ کے سفیر نکولائی گویا نے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی زلفی بخاری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں رومانیہ کے سفیر کا کہنا تھا کہ رومانیہ پاکستان کے لیے بے مثال موقع پیش کر رہا ہے۔ رومانیہ پاکستان سے 10 لاکھ سے زیادہ افرادی قوت درآمد کرنے کا خواہش مند ہے۔ سفیر کا کہنا ہے ہمیں ہزاروں ڈرائیوروں کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹروں، انجینئرز، تعمیراتی کارکنوں اور ماہرین کی ان شعبوں میں 10 لاکھ سے زیادہ افرادی قوت کی سخت ضرورت ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔